اللہ وبرکاتہ. سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر آواز آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ رب العالمین. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قرآن کورس QC1 کا جو چھوٹا سا تعارف ہے اس کی طرف چلتے ہیں. بیچ میں کچھ انسٹرکشنز ہوں گی، وہ انشاءاللہ وہ بھی میں ساتھ ساتھ دیتا چلوں گا. سب سے پہلے ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو، جو کہ بیسیکلی بانی ہے اس کورس کے. PhD جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے USA اوکلاہوما سے. ابھی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں KFUPM یونیورسٹی دمام سعودی عربیہ میں، اور ماشاءاللہ پیس ٹی وی پہ شاید آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا. ارشد اقبال ملک صاحب ہیں. یہ اس کورس کو پاکستان میں پروموٹ کرنے والی شخصیت ہے. ماشاءاللہ بڑا ان کا کام ہے. کیمیکل انجینئر ہے یہ، اور بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ پروفائل ہے. اقبال اینڈ کمپنی کے CEO ہیں، اور ان کی کمپنی جو ہے یہ لائف سیونگ اکوپمنٹس، میڈیکل اکوپمنٹس جو ہیں ان کی امپورٹر ہے، اور مختلف جو یہاں پہ ہاسپٹلز اور اس طرح کے ادارے ہیں ان کو یہ سپلائی کرتے ہیں. اور 2006 سے یہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کورسز جو ہیں ان کو ٹیچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. الفلاح منزل ٹرسٹ کے یہ چیئرمین بھی ہیں 2009 سے. الفلاح منزل جو ہے یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے. E11 میں ان کا جو ہیڈ آفس ہے یہاں پہ ہے. کراچی میں بھی ایک آفس ہے، DHA اسلام آباد، وہاں پر بھی یہ ابھی ایک سسٹم جو ہے وہ ان کا سٹارٹ ہے. تو ماشاءاللہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جی. تو الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے اس کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، لائک مائنڈیڈ لوگوں کو، ایک جیسی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، تاکہ اگر اسلامک سوچ والے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اسلامک ریوائول ہوگا. امت جو ہے اٹھے گی اور امت دوبارہ اپنے اس مقام پہ پہنچے گی جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کو سمجھنے سے ہوگا، کیونکہ قرآن ہی وہ روشنی ہے جس میں ہمیں چلنا چاہیے، اور جس میں چل کے ہمارے جو انسیسٹرز ہیں شروع میں وہ عروج پہ پہنچے. تو قرآن کو ہم نے 24/7 اپنی لائف میں لے کے آنا ہے، اور یہی ویژن ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ایک سوچ کے ساتھ، اسلامک ریوائول کیا جائے، قرآن کو ہر وقت ہر لمحہ اپنی زندگی میں لایا جائے. آپ کا ٹیچر موجود ہے جی یہاں پہ. یہ پروفائل آپ دیکھ سکیں گے بعد میں، کیونکہ اس کی جو سافٹ کاپی ہے یہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں آ جائے گی. تو جن کو شوق ہوگا وہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. میرے ساتھ پوری ٹیم ہے جی ماشاءاللہ، جو اس کورس ٹیچنگ سے منسلک ہے اور بڑا ایکسپیرینس لوگ ہیں. سب سے پہلے سسٹر ثنا ظہیر قادریہ ہیں. ان کی یہ پروفائل ہے اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. شی از کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. قرآن کورس کے QC4 لیول پہ ہیں. ابھی ہم جو ابھی اب سٹارٹ کر رہے ہیں یہ 1 ہے، تو انشاءاللہ کبھی آپ بھی 4 6 7 پہ ہوں گے انشاءاللہ. سسٹر حفصہ سہیل ہیں ہمارے ساتھ. شی از another اسسٹنٹ ٹیچر فار یو، کہ آپ کو مختلف جو کوئریز آئیں گی اس میں یہ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. بردر فواد احمد ہیں، IT پروفیشنل ہیں پشاور سے، اور یہ بڑی محبت کرتے ہیں جی قرآن سے. ان کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ ابھی QC5 میں ہیں، اور جب بھی ان نے ایگزام دیے اور جتنے بھی لیولز ہیں ان سب میں ان نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ.
تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں. IT سپورٹ میں ہمارے ساتھ برادر اجاز احمد ہیں, برادر عبداللہ احسن ہیں, سسٹر مریم احسن ہیں. آپ ڈیٹیل ان کی جو ہے وہ بعد میں جب آپ کے پاس کل انشاءاللہ سافٹ کاپی آ جائے گی تو آپ دیکھ سکیں گے. یہ ایک اسکیجول ہے. اس اسکیجول کو بیسیکلی پورا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ بھی آپ کے پاس سافٹ کاپی ہوگی, آپ دیکھ سکیں گے. آج ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم انٹروڈکشن کریں گے اور لیسن 1 جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. نیکسٹ ویک سے یعنی نیکسٹ سیٹرڈے سے ہم لوگ 2 لیسنز ایک ساتھ کیا کریں گے. 2 لیسنز کا یہ مطلب ہے کہ بیسیکلی اس میں 4 سب سیشنز ہو جائیں گے. کہ ایک جو ہے جو قرآنک ٹیکسٹ ہے اس کو ہم دیکھا کریں گے تھوڑا سا, اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو عربک گرامر ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اور اسی طرح ہم ایک اور قرآنک ٹیکسٹ دیکھیں گے اور پھر اس کی عربک گرامر. تو 2 جو لیسنز ہیں وہ ہم ایک ویک میں کر لیا کریں گے. آج ہم ایک ہی لیسن کریں گے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے لیسنز کی کیا روٹین ہوگی. پھر جب آپ 11 لیسنز کر لیں گے تو پھر ہم آپ کو ہمارے جو ساتھ میں سپورٹ ٹیم ہے اور ہم لوگ آپ کو اس کی ریویژن کروائیں گے, کیونکہ آپ کا ایک مڈ ٹرم ہوگا, اور ریویژن کے بعد جب مڈ ٹرم ہوگا تو انشاءاللہ آپ سارے اس میں بہت اچھے نمبرز لے سکیں گے. اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اور پھر ہم اپنے اینڈ تک جائیں گے, لیسن 20 تک. اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹس کی ساری ساتھ میں لکھی ہوئی ہیں کہ 5 فیبروری 2022. اس میں یہ ہمارا لاسٹ جو لیکچر پلانڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس اسکیجول کے مطابق اس کو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد آپ کی فائنل ریویژن ہوگی انشاءاللہ, اور پھر فائنل کوئز ہوگا. اور فائنل کوئز کے بعد پھر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 19 فیبروری 2022 کو ایک ہم چھوٹی سی آن لائن سیریمنی کریں گے. اس میں پھر آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. باقی آپ ڈیٹیلز اس کی دیکھ لیجیے گا. جو کرنے والے کام ہوں گے ساتھ ساتھ وہ کام یہ ہوں گے کہ ایک تو آپ نے جو ویکلی ہوم ورک ہے اس کو کرنا ہوگا, جو کہ آپ کے اسی گروپ میں آ جایا کرے گا, واٹس ایپ گروپ میں. اور آن لائن بیسیکلی وہ ہوم ورک ہوگا, اس کو آپ نے آن لائن ہی کرنا ہے, اس کا ریزلٹ بھی آپ کو اسی وقت نظر بھی آ جائے گا. دوسرا ورک بک ہوگی اس کے ساتھ میں, وہ آپ کو اس کی سافٹ کاپی بھی انشاءاللہ اسی گروپ میں آ جائے گی. السلام علیکم سر. دراصل مجھے یہ بتانا ہے کہ ٹیسٹ کب سے شروع ہو رہا ہے. مجھے آج ٹیسٹ دینا ہے. میں ٹیسٹ کے انتظار میں ہوں, کیونکہ کہا تھا کہ ٹھیک 6 بجے شروع ہو جائے گا. اچھا, وہ ٹیسٹ تو نہیں ہے یہ تو. چلیں ان کو وہ دیکھ لیجیے گے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. آج تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, آج ٹیسٹ نہیں, ابھی آپ اس کو دیکھیے گا. نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 18 کو شاید ٹیسٹ تھا, اس کو میں نہیں دے سکی تھی. تو مجھے سر نے کہا کہ آپ لوگوں کا اور باضابطہ نوٹ آیا تھا. آپ میڈم غلط لنک میں آگے ہیں. آپ اس کو ذرا دیکھ لیں. میں سر تھوڑا سا گائیڈ کر دوں انسٹیٹیوٹ میں. سر یہ 292 میں یہ ہے, یہ ایکچولی سسٹر ہماری, تو یہ اس لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہیں, ان کا تھوڑا سا ایشوز ہیں. چلے میں ان کو گائیڈ کر دوں. سسٹر آپ اپنے صرف کلاس لیں, انشاءاللہ آپ کو بعد میں گائیڈ کر دوں. جی کائنڈلی, ٹھیک ہے. ہاں, ورک بک ایک آپ کو جس کی سافٹ کاپی آپ کو مل جائے گی, اس کا آپ پرنٹ نکال سکیں گے. وہ آپ نے کرنا ہوگا. تلاوت آپ نے 5 منٹ روزانہ جو ہے وہ کرنی ہے. یہ آپ کے بیسیکلی ہوم ورک ہے. آپ کو ساتھ ساتھ مزید گائیڈ لائنس جو ہیں وہ ملتی جائیں گی. اب یہ ہوم ورک اور یہ اسائنمنٹس یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کی پرسنٹیج ہے, اور یہ کیومولیٹو پرسنٹیج آپ کی کاؤنٹ ہوگی ٹورڈز یور سرٹیفکیشن اینڈ آل دوز تھنگس. ہوم ورک 15% کا ویٹ رکھتا ہے, ورک بک 15% ہے, مڈ ٹرم کوئز جو ہے 30% ہے, ہیوی ہے تھوڑی سی. فائنل کوئز جو ہے 40% ہوگا, اور سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن. جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے تو اگر آپ کے 90% اینڈ ابو مارکس آتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا. اور اگر 70 سے 89 کے تک ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا.
اور اگر سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن چاہیے ہوگا تو پھر آپ کو یہ کنڈیشن پوری کرنی ہے کہ 50% سے 69% تک اور 70% اٹینڈنس لازمی ہے، تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن مل سکتا ہے، وہ 30% سے 49%، 50% اٹینڈنس ہونا لازمی ہے. یہ جو نیچے والے ہمارے وہ ہیں یہ تو ایک بیسیکلی اٹس اے رول، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کلاس میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے آتے ہیں یہ سارے ہائیلی موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن دینا. انشاءاللہ لے بھی لیتے ہیں. ایک اہم وضاحت جو ہے وہ میں کرتا چلوں کہ میں پرسنلی کوئی عالم مفتی کوئی اس طرح کا شخص نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں جیسے ہم سبھی عام لوگ ہیں. علماء سے سیکھ کر آگے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اور لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہوں. کل کو انشاءاللہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ بھی سیکھیں گے، آپ بھی لوگوں کو بتائیں گے، اور یہی ہمارا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہی کام ہے. تو ہمیں قرآن سمجھنا ضروری کیوں ہے، یہ بھی ہمیں کیونکہ ایک مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں اور ہم ٹائم لگائیں گے اور سارا کچھ، لیکن اس میں دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ مسلم بائی چانس ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے گھر میں قرآن کو بھی دیکھا، نمازیں بھی دیکھی، ماحول بھی دیکھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس لیول پہ یا اس طرح کا ہم میں سے اکثر کو نہیں مل پایا جو کہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم مسلم تو بائی چانس تو ہیں، اب ہم نے مسلم بائی چوائس بننا ہے. اور وہ کیسے بنیں گے؟ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے ہم قرآن کو، وہ میسج ڈیکوڈ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک بھیجا ہے. یہ ہمارے زندگی کی مینول ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو بہت سارے جو فنکشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ ہمارے فنکشنز ہیں کیا، اور ہم کلیئر ہو جائیں گے. اور اس ساری اسٹڈی کے اندر ایک نیچے آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہائی لائٹڈ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانیں. اس سفر میں جو ہے وہ دشمن تو بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ وعدہ کیا ہوا ہے اس نے کہ یا اللہ تیرے راستے میں بیٹھوں گا اور جو تیرے راستے پہ چلے گا اس کو بھٹکاؤں گا. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے یہ ایک بڑا اچھا بڑا اونچا سفر شروع کیا ہے، اور اس سفر میں شیطان ہمیں ضرور اٹیک کرے گا مختلف مسائل سے، تو وہ ہمیں انشاءاللہ بچ کے چلنا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. کورس کا تعارف میں قرآن ہم کہتے ہیں جی کہ ایک معجزہ ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا یا بتانا چاہے گا کوئی ایک کہ قرآن کیوں معجزہ ہے؟ ریز یور ہینڈ. آپ اپنا اگر زوم میں اگر آپ ریز ہینڈ کر سکیں یا اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں اگر کوئی بتانا چاہے. چلیں جی، قرآن معجزہ ہے. قرآن دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ، ان کے پاس کئی معجزے تھے. ایک بڑا معجزہ ان کا کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا، ایک لاٹھی تھی ان کے پاس. وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، وہ لاٹھی انہیں پانی پہ ماری تو پانی پھٹ گیا. لیکن اب کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی، یہود جو ہے ان کا تو کہنا ہے کہ وہ لاٹھی موجود ہے، اور بہت ساری اس طرح کی ملتی ہیں روایات کہ وہ لاٹھی موجود ہے کسی صندوق میں ہے. لیکن اگر آج وہ لاٹھی کسی کے ہاتھ میں آ بھی جائے، میرے آپ کے ہاتھ میں آ بھی جائے، تو نہ تو وہ سانپ بنے گی اور نہ ہی وہ پانی پھاڑے گی، کیونکہ اس کے لیے ہاتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کا چاہیے. لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن وہ معجزہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے آ سکتا ہے تبدیلی کا. یہ ہمارے اندر تبدیلی لے آئے گا، اور یقین کریں کہ ایسی تبدیلی لے کے آئے گا کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا مس کر رکھا تھا. تو ایسا معجزہ ہے، تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے جو بھی اس سے جڑے گا اس میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے گی. اور وہ پازیٹیو تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، وہ اتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی ایک ڈفرینٹ انسان، ایک بہتر انسان فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کے سوالات اٹھیں گے بہت سارے، جیسے پہلے بھی اٹھے. اس میں ایک کیونکہ ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوگا، اور اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے کافی مٹیریل کور کرنا ہوگا، اور کورس کو بھی ساتھ ساتھ آگے لے کے چلنا ہے، اور لوگ بھی ساتھ میں جوائن کر رہے ہوں گے.
तो सवालात आपके मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से माशाल्लाह जो बहुत एडवांस लेवल पे होंगे. अगर कोई ऐसा सवाल आया जो कि लेक्चर के अगले हिस्से में आने वाला है या 1-2 दिन बाद आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूंगा कि हम इसको, या मैं ऐसे इशारा कर दूंगा कि ये आने वाला है, जस्ट वेट इट. इसका अभी ये टाइम नहीं है, ये इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में कहीं पे इसका जवाब आ जाएगा, ताकि हम अपना फ्लो जारी रखें. कोई सवाल आप ऐसे होंगे जो कि बहुत हाई लेवल के होंगे, उसमें फिर या वो इररेलेवेंट होंगे तो उनको हम छोड़ देंगे. उसके लिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको, मैं ऐसे इशारा कर दूंगा पीछे की तरफ कि इसको अभी रहने दें, ये इररेलेवेंट है. हाँ, आप इसके बाद अगर पर्सनली तौर पे मुझे हमारे ग्रुप को व्हाट्सएप करके अलहदा से पूछते हैं कोई बात, कोई सवाल पूछते हैं जो कि इस कोर्स से या इस लर्निंग से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह हम उसका अलहदा से जवाब जरूर देंगे. लेकिन इन बिटवीन हम उन सवालों का इमीडिएट जवाब देंगे जो बिल्कुल आज के लेट्स से सबक से रिलेटेड, आज की फौरन बात है, उसका हम फौरन जवाब देंगे. टीचर मोड होता है और एक स्टूडेंट मोड होता है. मैं इस वक्त टीचर मोड में हूँ. आप लोग किस मोड में हैं, जरा बताइएगा मुझे. मैं तो टीचर मोड में हूं, आप लोग किस मोड में हैं? लिख दें, चैट में लिख दें. आवाज आ रही है मेरी सबको? माशाल्लाह, चैट में आ रहा है जी. स्टूडेंट मोड में है. सिस्टर जैनब जफर कह रही हैं कि वो स्टूडेंट मोड में है. देखिए, आप अगर अपने आप को स्टूडेंट मोड में इस वक्त फील कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी अपने आप को टीचर मोड में लेके आए, क्योंकि कल को आपने भी पढ़ाना है. ये जज्बा इसी तरह ही है, कुरान सीखना और सिखाना है. और ये जो मामला है, ये आपको पता है ना कि एक हदीस में भी आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि आप में से बेहतर कौन है, वो बेहतर है जो कुरान सीखता है और सिखाता है. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट, इसमें भी हम लेके चलेंगे. तो अपने आप को एक टीचर मोड में रखें. जब इंसान सिखाता है तो उसकी अपनी बहुत ज्यादा लर्निंग होती है ऑटोमेटिकली. एक चीज ज़हन में रखिएगा कि ये जो कोर्स है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये तफसीर कोर्स नहीं है, ये तजवीद कोर्स नहीं है, ये नाजरा भी नहीं है, और ये फिका कोर्स भी नहीं है. ये सारी चीजें नहीं है. हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान पाक को समझ सकें. बेसिक चीजें, जैसे इसको हमने नमाज के जरिए सीखना है, तो या इस कोर्स का मकसद क्या है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं वो हमें समझ में आने लगे. एक रिक्वेस्ट होगी कि अपने मोबाइल बंद रखिएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस आपको और दूसरे लोगों को मोबाइल की वजह से ना हो. तो दूसरों को दावत दें. हमेशा एक चीज भी सीखें तो किसी दूसरे तक पहुंचाएं. बल्लिगु अन्नी वलौ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना कि पहुंचाओ मुझसे चाहे भले एक आयत ही हो. तो आप तो काफी सारी आयत सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह, तो इस मोड को जरूर ज़हन में रखिएगा. हमारा जो अंदाज़े तालीम है इस कोर्स का, ये मुनफरिद है, और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने घर बैठ के इसको बना लिया है. इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई है. जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल थी मुख्तलिफ टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उनसे इस्तेफादा किया गया. डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने बड़ा काम किया, उनकी टीम ने बड़ा काम किया. और मुख्तलिफ दिमाग के जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी तरीक़ेकार होते हैं, इसी तरह जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. तो ये सारी टेक्निक्स को एम्बेड किया गया है, और फिर ये तरीक़ाकार जो है अख़ज़ किया गया है कि ये जो है ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त तरीक़ाकार है. कोर्स का जो मटेरियल है हमारा, उसमें दो चीज़ें हैं जी. एक रिक्वायर्ड मटेरियल है, एक ऑप्शनल है. रिक्वायर्ड मटेरियल में एक टेक्स्ट बुक है QC1 की, एक वर्कबुक है QC1 की जो कि आपको, और एक अल्फाज मानी कार्ड है.
टेक्स्ट बुक जो है इसके अंदर वो सारा मवाद है जो बेसिकली अभी हम इन स्लाइड्स में भी देखेंगे, और फिर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी जो है वो PDF फॉर्म में मिल जाएगी। और टेक्स्ट बुक में उसी से रिलेटेड वो सारा मवाद मौजूद होगा जैसे टेक्स्ट बुक्स में होता है। वर्क बुक वो होगी जिसके ऊपर आप होमवर्क करेंगे, इसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और अल्फाज मानी कार्ड जो है इसके अंदर एक लिस्ट होगी जो कि तकरीबन 230-232 अल्फाज की एक लिस्ट होगी जो हमने सीखने हैं इस कोर्स के दरमियान कुरान के। और वो कार्ड जो है वो नॉर्मली तो सजेस्ट ये किया जाता है कि आप एक ओरिजिनल कार्ड हो आपके पास, या फोटोकॉपी करा के उसको अपनी पॉकेट साइज में पॉकेट में रख लें, उठते बैठते उसको पढ़ते रहें। ऑप्शनल आपके पास जो है वो पारा है, तालीमुल कुरान पारा है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहें तो बाजार में अवेलेबल है। अभी आपको इसकी वो एक स्नैप भी दिखा देता हूँ। USB में आपको फाइल्स मिल सकती हैं, PDF स्लाइड्स मिल सकती हैं, ऑडियो कुरान की आपको वो मिल सकती है USB में, लेकिन ये ऑप्शनल है। आजकल और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। एक चीज़ यहाँ पे और जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि सॉफ्ट कॉपीज जो हैं वो आपकी जो सर्टिफिकेट जब इशू होगा इंशाल्लाह, जो भी आप सारे कंप्लीट करेंगे इस कोर्स को, वो फ्री हैं। और QC1 की जो बुक्स हैं, जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, वो भी फ्री हैं। हार्ड कॉपीज जो हैं अगर आपको सर्टिफिकेट में चाहिए होगा तो 100 रुपया उसकी जो है वो चार्जेस होंगे इस पर सर्टिफिकेट। और QC1 की अगर बुक्स आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, बहुत खूबसूरत बुक्स हैं, वो अगर आपको चाहिए तो वो 650 रुपीज़ में वो आएंगी। और पोस्टल चार्जेस जो होंगे, ये पोस्टल सिर्फ विद इन कंट्री होगा, पाकिस्तान में होगा, बाहर नहीं होगा, तो ये 300 रुपया पर आइटम होगा। यानी अगर आप बुक सेट मंगाते हैं तो वो 300 रुपया ऐड होगा, यानी 950 रुपये हो जाएंगे। और अगर आप सर्टिफिकेट मंगाते हैं पोस्टल उसमें तो वो 400 रुपये हो जाएंगे, 100 रुपया वो और 300 रुपये ये। ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन ये है जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये भी आपके पास स्लाइड में आ जाएगी, तो आप डिटेल इसकी भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। ये बुक्स का स्नैप्स हैं जी। ये आपके पास एक राइट साइड पे टेक्स्ट बुक है, ये इसका कवर है, बड़ी खूबसूरत कलर्ड प्रिंटिंग अंदर भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जिनको बुक्स के साथ लगाव है कि वो खूबसूरत बुक्स के साथ खूबसूरत कलाम अल्लाह का पढ़ना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। ये कार्ड है जिसकी अभी मैं पहले बात कर रहा था, ये फोल्डेबल कार्ड होता है। इसके ऊपर जो है इसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, उठते बैठते इनको पढ़िए, आपको सारे अल्फाज माने, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वो तालीमुल कुरान पारा है कि जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ये भी अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप लेके इसको पढ़ना चाहें तो इसमें बड़ी अच्छी जो है वो जो साइड लाइन्स में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जो कि अच्छा हेल्प आउट करती हैं आपको अंडरस्टैंडिंग में। ये ई सर्टिफिकेट है जो इंशाल्लाह जब आप कामयाबी से QC1 कंप्लीट करेंगे तो ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस कहा था कि 90% एंड अबव, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स को का इनकाद किया और हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। ये इसी तरह ही है, किसी ने मुझे बताया, मैंने किसी को बताया, उसने आगे बताया। ये टीम वर्क है, कभी भी वन मैन शो नहीं होता। और यही मुस्लिम उम्मा बेसिकली यही एक एग्जाम्पल है कि ये जो जोड़ है हमारा। मुबारक है सबको, ये मुबारक सफ़र, अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। और आप यकीन करें कि अल्लाह अपने कामों के लिए लोगों को चुनता है। हर किसी के बस का ये काम नहीं होता। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको उम्र के किसी भी हिस्से में आप हो, छोटी उम्र है, बड़ी उम्र है, दरमियानी उम्र है, व्हाट्सएवर, लेकिन अल्लाह ने आपको चुना है, उसका बहुत शुक्र अदा करें। कोर्स के मकासद 6 मकासद हैं, बेस लाइन उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन 6 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखिएगा। नंबर 1 ये है कि हम कुरान समझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम आसानी से कुरान को जब अरबी में पढ़ें तो कुरान हमें समझ में आए, जब हम सुने तो हमें समझ में आए। ठीक है, तो और एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुरान पाक को डायरेक्ट अरबी में समझना
اور اس کا ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج میں کرنا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اس کو گریپس کرنے میں، اس کو ایبزارب کرنے میں، اس کو سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے. پھر اسی طرح اس کو پڑھنے میں جو لطف ہے وہ بہت بہت زیادہ فرق ہے. انشاءاللہ آپ لوگ محسوس کریں گے. ایون یہ QC1 کے بعد ہی آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ پھر آپ کی خواہش آئے گی دل میں کہ میں تو پھر جتنے بھی QCs ہیں میں سارے کروں گے. تو 50% الفاظ جو ہیں 20 گھنٹے جی اللہ کی راہ میں لگانے ہیں. تو 50% الفاظ جو ہیں جو قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا، نماز سمجھ میں آ جائے. نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں جی بچپن سے، اور میں نے یہ کہا کہ ہم مسلم بائی چانس ہیں. تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بڑا اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں، ایون آپ گوگل بھی کریں گے نا، جن کو قرآن یا نماز سمجھ میں آتی ہے. اب ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، اتنی محنت بھی کرتے ہیں، بس مسجد بھی جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے ہیں، لیکن کیا پڑھتے ہیں واللہ عالم. بچپن میں یاد کرا دیا تھا طوطے کی طرح، بس وہی رکھ لیا، کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو جب نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ سے تعلق بنے گا، آپ یقین کریں. کیونکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یعنی تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن میں آ جاتے ہیں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ احساس جب آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ میں اتنی بڑی ذات کے آگے کھڑا ہوں اور میں اس سے بات کر رہا ہوں، یعنی فرسٹ پرسن میں آ کے بات کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم آگے سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے فرسٹ پرسن میں، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کریں. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس نماز کا. اسی نماز میں پھر خشوع، خضوع اور شوق پیدا ہوتا ہے. انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے کہ اب دوبارہ سے، یا اللہ نماز کا ٹائم آئے، میں دوبارہ سے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں نے دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرنی، دوبارہ سے بات کرنی آپ سے. میں نے تو نماز آپ کی مؤثر ہو جاتی ہے. وہ نماز بنتی ہے جو پھر برائی سے بچاتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہے یار نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برائی ہی نہیں چھوٹتی ہے. تو برائی اس لیے نہیں چھوٹتی ہے کہ پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ دیتے ہیں، نماز قائم تو کرتے نہیں. نماز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کا، جو مقصد ہے، وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. جب آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا، عربی آپ کو اٹریکٹ کرنے لگے گی، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں آپ کے دل میں اترنے لگیں گی، تو آپ کا آٹومیٹیکلی جو ہے تعلق پیدا ہوگا، اور یہ آپ کے زبان، آنکھوں سے، ذہن سے یہ اترتا ہوا آپ کے دل میں آئے گا. اور جب دل میں آئے گا تو یہ آپ کے عمل میں آئے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے روح کا مسکن جو ہے یہ دل ہے آپ کا، یہاں پہ روح رہتی ہے. اگر یہ دل جو ہے یہ گندا ہے تو پھر پورا جسم، پورے کام، ہر چیز گندی ہے. اگر یہ صاف ہے تو پھر ہر چیز صاف ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ قرآن ہے جو اس زنگ کو ختم کرتا ہے. تو یہ اس کا مقصد ہے، اس کے ساتھ تعلق بنے گا. ظاہر سی بات ہے جب تعلق بنے گا تو اندر آپ کی روح، دل خوش ہے تو آپ کے اعمال بھی نیک ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ کے دل میں رحمان ہے تو آپ کے مسلز کو سگنل جائیں گے، وہ اچھائی والے جائیں گے. اور اگر دل میں شیطان ہے تو مسل، کیونکہ خون تو ہر جگہ مسلز میں خون ہی جاتا ہے، دل ہی پمپ کرتا ہے. تو وہاں سے جب خون جائے گا، جس طرح کی دل کے اندر آپ نے جو ہے وہ ماحول رکھا ہوا ہے، وہی پروپوگیٹ کرے گا آپ کے جسم میں، وہی اعمال بھی ہوتے ہیں آپ کے. تو نیک اعمال، اعلی اخلاق ایسے ہی آئے گا اس قرآن کو سمجھنے سے، اس کو ڈیکوڈ، اس کو سمجھ. اور ایک بونس پوائنٹ بھی ہے ماشاءاللہ ان سارے پوائنٹس کے اوپر کہ آپ کو عربی بول چال میں 100 جملے بھی آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ ایزیلی اپارٹ فرام دس. تو یہ مقاصد اس کے قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم یہ چلیں گے آپ کو لے کے. اور اس کو اشاروں کی مدد سے، اشارے کیا اشارے ہوں گے ان کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی. اور یہ اشارے ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اشارے کریں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. اور کیونکہ ہمارا دماغ اور ہمارے مسلز، ہمارے جیسچرز، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ ہل رہا ہے، تو یہ ان کو ہم ہلاتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل ہے. اور اسی نیچرل وے کو ہم استعمال کرتے ہوئے 50% الفاظ جو ہیں وہ صرف 20 گھنٹے میں سیکھ لیں گے.
कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 10 क्लासों में पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरीके में और ट्रेडिशनल तरीके में फ़र्क क्या है जी? सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अरबी सीखते हैं ट्रेडिशनल वे में तो वो आपको बेसिक जुमलों से सिखाते हैं, हाजा बैतुन, हाजा वलदुन, तो इस तरह की चीज़ें, बैतुन कबीरुन, तो इस तरह वाली चीज़ें आपको सिखाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में या आपके डेली की रूटीन में बहुत कम इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। लेकिन मुसलमान हैं हम लोग और हमारे दिल में वो जस्तजू है एक मुसलमान का जो अमल होता है उसको कायम करने की, इसीलिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए सारे इकट्ठे, हम अल्लाह का कलाम सीखने के लिए। तो नमाज से इब्तदा, नमाज क्योंकि हमारी रूटीन है, 5 वक्त हम पढ़ते हैं और 5 वक्त नमाज जब हम शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है कि इसकी रेपिटेशन होती है। जब रेपिटेशन होगी कम से कम 5 नमाजों में अगर हम खाली फ़राइज़ भी पढ़ें तो 17 तो वो हो जाते हैं, और अगर सुन्नतें भी पढ़ लें तो 12 और ऐड कर लें जो मुअक्कदा हैं, जिनको हम कहते हैं मुअक्कदा हमारे यहाँ, तो फिर आप वितर भी ऐड कर लें। ये 32 के करीब जो हैं ये एक दिन में रकातें बनेंगी जिसके अंदर हम रिपीट करते हैं। तो इतना जब रेपिटेशन होगा और वो हमें समझ आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी अजीम चीज़ है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, तो हमारी डेफिनेटली जिंदगी का जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो आज से आप ये कोशिश करें कि हर वो चीज़ जो आपको अरबी में आती है इसका एक एक लफ्ज़ समझने की कोशिश कीजिए। अरबी में जो भी सूरतें हैं, जो भी कलाम हमें आता है, बाकी तो हमें अरबी इतनी आती नहीं है, हमें अरबी जो आती है वो वही आती है जो हमने ज़ुबानी बचपन में सीखी हुई है, कुछ सूरतों की शक्ल में, कुछ दुआओं की शक्ल में, बस वही है हमारे पास। और ये तरीका हर एज के लिए अच्छा है, मर्द, बूढ़ा, औरतें, बच्चे सब इससे सीख सकते हैं। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि हमारा जोर सुनने पे होता है और पढ़ने पे होता है। अभी आप पढ़ भी रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन आपके सामने और आप मुझे सुन रहे हैं, ये बेसिकली रिसेप्शन है, आप रिसीव कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ या आपको एक नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोग रिसीव कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इसमें आपके दिमाग पे बोझ कम पड़ेगा। जब आप बोलेंगे या लिखेंगे तो फिर आप प्रोडक्शन में जाएंगे जिसमें आपको ज्यादा कुव्वत चाहिए, ज्यादा दिमाग खर्च होता है, उसमें हम जरा हल्का हाथ रखेंगे, उसमें हम ज्यादा बर्डन आप पे नहीं डालेंगे। तो इस सीखने के अमल में आपने लिखना तो वर्कबुक में जाके, यहाँ पे आप सिर्फ सुनेंगे और थोड़ा सा आप देख के पढ़ेंगे ताकि आपका दिमाग जो है वो कम बर्डन में रहे और आप जल्दी सीखें चीजों को। फर्क नंबर 3 जो है वो ये है कि हम माने पर ज्यादा जोर देंगे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो सीखता है चीज बड़ी ही हम्बल अंदाज में, जैसे अभी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह कुरान को थोड़ा देर बाद इंट्रोडक्शन के बाद, तो आप देखेंगे कि बड़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट, जैसे बच्चे की उंगली पकड़ के चलते हैं, तो वैसे ही हम एक दूसरे की उंगली पकड़ेंगे। तो कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ हमारे जो कोलीग्स हैं, हम सारे मिलके इकट्ठे एक दूसरे को बताने, समझाने, सिखाने के लिए। तो मैंने आपसे जैसे अर्ज किया था कि आप भी टीचर्स हैं, अपने आप को टीचर्स समझे, हम सब एक ही लेवल पे हैं, एक ही मकसद के लिए हैं। तो हमने उस तरीके से समझना है जो सबसे आसान तरीन तरीका है। शुरू में कवायद पर कम जोर होगा, अरबी के कवायद हम अगर यानी उनको भारी भारी कवायद को सामने रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है अच्छा भला बंदा भी डर जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये युमिनून एक लफ्ज है यहाँ पे, ये देखें आपके सामने, अगर इसको कोई आप हैवी ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा गायब, जमा, मुज़क्कर, महमूज और बाब इफ़ाल। इसी तरह फेल मुजारे मरफू बेसबूत नून दानहु मिनल अफ़ाल, तो आपको यानी अफ़ाल हम्स, तो ये अब आपको क्या, जब इस तरह की बात होगी तो आप में से ज्यादातर भागी जाएंगे और मैं भी भाग जाऊंगा शायद कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से इसको समझेंगे ताकि मुझे समझाने में मज़ा आए, मेरे साथियों को, कोलीग्स को आपको बताने में मज़ा आए और आपको समझने में और सीखने में मज़ा आए।
اور اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں. جب اللہ کا کام ہوتا ہے نا، یہ کام اس کا ہے، ہم تو صرف ایک ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کی طرف سے ہے. قرآن آسانی سے سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، یہ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آسانی سے قرآن کو سمجھنے کے لیے نمبر 1 کوئی نہ کوئی پیٹرن ہونا چاہیے نا جس کو فالو کرنا ہے. وہ پیٹرن میں تھوڑا سا اوپن کر کے آپ کو بتانے لگا. اس فارمیٹ میں جو ایک حافظی مدنی مصحف ہے، مصحف کہتے ہیں یہ قرآن جو جلد 2 جلدوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا، یہ سعودیہ میں حرم میں بھی ملتا ہے، وہاں پہ فری کاپیز بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک پاکستانی ورژن ہوتا ہے، ایک بلو میں آتا ہے جو عرب، ایک گرین میں آتا ہے. تو آپ اکثر اس کو جانتے ہیں. تو اس کا پیٹرن ہم فالو کر رہے ہیں. اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے آپ کو. اس کے جو 50% الفاظ ہیں اس کے اوپر ہمارا زور ہوگا. ابھی یہ اگزامپل کے طور پہ ایک صفحہ ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں، اور یہ صفحے میں آپ دیکھ رہے ہیں پنک ہائی لائٹڈ کچھ الفاظ ہیں، کچھ بلیک ہیں. تو یہ جو پنک ہائی لائٹڈ ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ انشاءاللہ کورس آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو اتنے الفاظ ایک صفحے کے اوپر قرآن کے ہر صفحے پہ آلموسٹ آپ کو اتنے الفاظ جو ہے فیملیئر لگ رہے ہوں گے کہ یہ تو آپ نے پڑھے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، ان سے تو آپ واقف ہیں. تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. یہی ہمارا فوکس ہے کہ الفاظ کو ہم نے پہچاننا ہے. بیسیکلی یہ جو حافظی مدنی مصحف میں نے آپ سے ذکر کیا، اس میں آن ایوریج 600 پیجز ہیں، اور 600 پیجز میں ہر صفحے پہ 15 سطور ہوتی ہیں، 15 لائنز ہر صفحے پہ. اور الفاظ جو ہیں ہر سطر میں وہ 9 ہوتے ہیں. تو اگر 9 الفاظ ہر سطر میں ہوں اور 15 سطور ہوں ہر صفحے میں، تو ہر صفحے میں کتنے الفاظ ہو جائیں گے آلموسٹ؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کسی کا میتھ اتنا تیز ہے کہ 15 کو 9 سے ضرب دے دے تو کیا آئے گا؟ چیٹ میں لکھ دیں، چیٹ میں 15 بتائیے. 135 آتا ہے، لیکن چلیں ہم اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں. تقریباً کیوں 130 ہم لے لیتے ہیں. تو ہر پیج کے اوپر 130 جو ہیں الفاظ ہیں. اچھا، اب 130 الفاظ ہر پیج پہ ہیں تو ٹوٹل 600 صفحات ہیں. تو 600 کو جب ملٹیپلائی کریں گے 130 کے ساتھ تو 78,000 کے قریب آپ کے الفاظ بنتے ہیں. قرآن پاک میں مور اور لیس 78,000 الفاظ ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا اپنا مائک آن کر کے کہ کیا 78,000 الفاظ سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی بتائیے گا، مشکل ہے آسان ہے یہ ٹاسک؟ آسان ہے. آسان ہے. اچھا alright، آپ مائک آف کیجئے گا. اچھا یہ میرے بھائی یہ کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے 78,000 الفاظ کو. سر انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو 78,000 الفاظ جو ہیں یہ یاد کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے جی. لیکن ہم جو کرنے والے ہیں یہاں پہ وہ ہم یہ کریں گے کہ ہم ٹوٹل 17,000 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے یاد کرنے ہیں. بیسیکلی 17,000 بھی نہیں یاد کرنے ہیں، کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر تکرار کو ہم دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں ایک لفظ جو ہے وہ کتنی بار آیا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، تو باقی 17,000 الفاظ رہ جاتے ہیں. 17,000 سمجھنے یاد کرنے آسان ہے مشکل ہے؟ میرے حساب سے ابھی بھی مشکل ہے. جی مشکل ہے. مشکل ہے. اور آسان کرتے ہیں. دیکھیں علم صرف جو ہے یہ ایک علم ہے جس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے بھی، اور گروپ میں اس کی ڈیفینیشن میں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ اس کو، یہ بیسیکلی ورڈز بنانے کا، صیغے بنانے کا ایک طریقہ کار کو سمجھنا ہے کہ عربی الفاظ بنتے کیسے ہیں. تو اگر وہ ہم تھوڑا سا قواعد اس کے بیسک جان لیں
तो बाकी हमारे पास 4500 अल्फाज रह जाते हैं जिनको हमने सीखना है, लेकिन अभी भी ये ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। तो हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि हमने इसके रूट लेटर्स पे नजर दौड़ानी है, और रूट लेटर्स अगर हम जान लेंगे कि जो कोई मादे कहलाते हैं, तो रूट लेटर्स जानने के बाद सिर्फ 1850 अल्फाज अगर हम सीखेंगे तो हमें पूरा कुरान पाक के अल्फाज समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सीख लेंगे वो सारे अल्फाज। तो ये बड़ा टारगेट नहीं है, 1850 अल्फाज हैं। तो औसतन एक मादा या एक रूट लेटर जो है वो 2 से 3 मुख्तलिफ सूरतों में आया करता है। मसलन ये आप देखें कि ये रूट इसका जो है, या जो रूट लेटर्स है, या जो इसका मादा है वो ऐन लाम मीम है, जिसको हम इल्म भी कहते हैं, उर्दू में भी हम इल्म यूज करते हैं। तो अलीमा, अल्लमा, तअल्लमा, तालीम, ठीक है, इसी तरह आलिम, अलीम, अल्लाम। ये इतने सारे जो अल्फाज हैं, ये बेसिकली जो उसका रूट है, ये जो रॉ है रूट लेटर्स, वो सेम है, आइन लाम मीम। ये मुख्तलिफ जब हम सांचों में डालते हैं तो मुख्तलिफ वर्ड्स निकलते हैं। बस ये इल्म हम जब सीखेंगे तो हमारे पास 1850 अल्फाज रह जाएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल से काफी आसान टारगेट है कि नहीं है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब 1850 इस कोर्स के अंदर जो हमने सीखने हैं वो 230-232 अल्फाज हैं, तो बहुत ही आसान है। बाकी आप अगले कोर्सेज में, अगले लेवल में इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल कमर में फरमाया है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने तहकीक, बेशक, सर्टनली हमने आसान कर दिया है इस कुरान को समझने के लिए, याद दहानी के लिए, इसको हमने आसान कर दिया। और अब अगर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये आसान है, समझने के लिए भी आसान है, याद करने के लिए भी आसान है, पढ़ने के लिए भी आसान है, तो अगर कोई इंसान ये कहे कि नहीं ये तो मुश्किल है, तो ये तो अल्लाह ताला की नाफरमानी है, और ये शैतानी वसवसे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आसान है तो ये आसान है, तो ऐसा ना सोचे कि ये मुश्किल है, और ना ही ऐसा समझे कि ये मुश्किल है, ना ही ऐसा कहे ये मुश्किल है। देखिए, हम तो हर गिज़ जो है वो कुरान को झुटलाने वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी सूरत में हम अल्लाह को ना झुटलाने वाले हैं, ना कुरान को झुटलाने वाले। तो इसलिए हमें अपने आप को मजबूत रखना है। शैतानी वसवसे जैसे मैंने अर्ज किया आएंगे, लेकिन उनसे बच के हमने चलना। इम्तियाजी खुसूसियात इस कोर्स की चंद एक और हैं, और इंशाअल्लाह इनके बाद हम अपने एक ब्रेक लेंगे और फिर हम जो है हम अपने कोर्स की तरफ चलेंगे। इस कोर्स में सूरह फातिहा से शुरू करते हैं, क्योंकि बार बार नमाजों में आती है। मैंने अर्ज किया कि नमाजों में रोजाना 32 बार अरबी में हम अल्लाह से बात करते हैं। कम अज कम अगर हम फराइज अदा कर लें, 12 सुन्नतें अदा कर लें, और उसके साथ जो है वो हम वितर अदा करेंगे, तो ये 32 आपकी रकातें बन जाएंगी। कैसा जबरदस्त आगाज है, और मकसद भी साथ में ही हासिल हो रहा है। यानी एक आप नमाज पढ़ रहे हैं, और उसी नमाज को पढ़ते पढ़ते आप अरबी सीख रहे हैं, कुरानिक अरबी, और उसी से इंकिशाफ, उसी से डोर ओपन होंगे, और आप कुरान पाक को बेहतरीन तरीके से समझना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। हर रोज हम 5 नमाजों में तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, तो इसी को हम टारगेट बनाते हैं कि इसी 1 घंटे को हम यूज करते हुए अरबी जुबान भी सीखें और कुरान हमारे लिए आसान हो जाए। और इसीलिए बहुत मुअस्सर तरीका है कि बार बार हम नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं उसी से हम इस्तिफादा करते हैं। इसका जो बेसिकली लेआउट है वो इस तरह से है कि नमाज को हम जानेंगे शुरू से लेके एंड तक, बल्कि अजान से शुरू करेंगे कि अजान जब आती है, जब अजान कही जाती है, पुकारी जाती है, तो उसमें क्या अल्फाज हैं, क्या मतलब है, वहां से हम शुरू करेंगे। क़याम, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, जो बाकी हम नमाज के अंदर तलावत करते हैं,
तशहुद, दुरूद शरीफ, दुरूद के बाद की जो दुआ है वो हम सीखेंगे। पूरी नमाज का जो है ना पूरा तरीक़ेकार इंशाअल्लाह ये हम सीखेंगे। और ये 6 सूरतें हैं जो हम में से अक्सर को याद है इंशाअल्लाह, और बड़ी तादाद को याद होती है। यही हम कुरान पाक में नमाज में इनको रिपीट करते रहते हैं कि सूरह अल असर है, सूरह अल काफिरून है, नस्र है, इखलास है, सूरह फल्क है, सूरह नास है। ये हम में से अक्सर और बेशतर को आती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो दुआएं, 4 दुआएं बड़ी आसान है, अक्सर हम में से शायद आती भी हैं सबको, कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाह वजू से पहले, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन व जल्नी मिनल मुततख्खरीन, ये वजू के बाद की दुआ है। और अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ये आप पढ़ेंगे। ये दुआ भी जो है हर नमाज के बाद मांगनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया है। तो बड़ी बाबरकत ये एक सेट है जी। नमाज पूरी हम जानेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें पता होगा हम क्या पढ़, जब हम ये सूरतें पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हम क्या पढ़, जब हम दुआ करेंगे तो हमें पता होगा हम क्या दुआ मांगे। तो मकसद और अमल और नेकी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। हाँ ले जी, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम मौजूद है। यहाँ पे मैं एक ये टाइम आपके लिए स्पेयर करता हूँ। आपने अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं। इसी कोशिश करें कि इस कोर्स से रिलेटेड हो। और हम हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपका जवाब देने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। तो 5 मिनट है, उसके बाद वो जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक 5 मिनट की, और उसके बाद अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्लोर इज ओपन। कोई क्वेश्चन है अपना माइक ऑन करें और बोलें। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारी क्लास स्टार्ट होती है 5:30 बजे से 8 बजे तक, तो हमें हमारे जो नमाज का टाइम है, तो इस नमाज के टाइम से पहले या हमारा क्लोज हो जाएगा या बाद में होगा, किस तरह? आपका नमाज का टाइम आप कहाँ पे होते हैं? मगरिब कितने बजे होती है आपकी? सर अभी तो ईशा की अजानें हो रही है, मगरिब की नमाज के बाद ही कि मैंने मगरिब के क्लास बाद होते हैं ना? या हम जी आते हैं बीच में ईशा के, ठीक है। अभी अभी जी। ईशा की अजान हुई है। तो जमा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अडियाला रोड समरदार से। अच्छा, यहाँ पिंडी से ही बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, तो अब देखिए ना, अब ये आपके पास टाइम है कि इसके अंदर आप नमाज अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये सेशन के बाद आप नमाज फिर अदा करेंगे। अगर आपने बाजमात मस्जिद करीब है और बाजमात आप जाके पढ़ के आ सकते हैं तो दैट इज फाइन एज वेल, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? चलें जी, सवाल नहीं है तो लेट्स टेक अ ब्रेक। और अभी हमारे पास टाइम हुआ है जी 6:36 है और 45 पे 6 यानी 6:45 पे दोबारा मिलते हैं, शार्प 6:45 पे इंशाल्लाह। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो हिस्सा है वो स्टार्ट होगा। बहुत शुक्रिया।
कितनी देर की ब्रेक दी है? सिक्स 45 पे दोबारा क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। जी आगे सब लोग वापस, कुछ लोग अभी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। चलते हैं हम अपने सबक 1A की तरफ। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि दो पार्ट होंगे, एक 1A एक 1B। 1A में हम जो कुरानिक टेक्स्ट है उसको हम देखेंगे और B पार्ट में हम उसकी जो हल्की हम देखेंगे। इस सबक में आप सीखेंगे तावुज़ को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इसके ग्रामर का कुछ हिस्सा देखेंगे आप। इस सबक में 12 नए अल्फाज हैं बेसिकली, जो कुरान पाक में 7,000 से ज्यादा बार आए हैं। तो ये छोटा सा जो भी हम सेशन करेंगे, इसके अंदर आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आप, अभी हमने एक फेज कंप्लीट किया और अब हम दूसरे फेज में एंटर हो रहे हैं, तो बड़े दिल से अल्लाह का जो है वो हम्द किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सबक में वही 7,000 से ज्यादा हम लोग जो हैं वो बार बार आने वाले अल्फाज जो हैं, जो 12 अल्फाज हैं जो 7,000 से ज्यादा दफा आए हैं, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और ये आप देख रहे हैं, ये बैटरी आपको दिखा रही है, ये 78,000 का टारगेट है और इस कोर्स में हम तकरीबन ये हाफ तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी अगले कोर्सेस में। और आज के इस सेशन के बाद इंशाल्लाह आपका टारगेट जो है 7,000 के करीब पहुंच जाएगा और अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। तावुज़, तो सबसे पहले तो जो है वो इसको हमने प्रोनाउंस सही करना है कि तावुज़ है, ये ताऊज़ या कोई और इस तरह का लफ्ज़ नहीं है, तो इसको तावुज़ बोलेंगे, तावुज़। तो कुरान को पढ़ने से पहले जो है वो हमें हुक्म है इस चीज़ का कि हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। तो इसका ही हम तर्जुमा यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो जो पहली चीज़ है वो पहले ही होनी चाहिए, तरतीब हमेशा सही होनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की
मिन का मतलब से शैतान जो मरदूद है। तो इसको जब हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो अब आपका जरा ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। हम वर्ड बाय वर्ड चलेंगे ताकि हमें समझ में आए। यहाँ पे देखें, वर्ड यहाँ पे है आऊज़ु। आऊज़ु, इस आऊज़ु के साथ आप देख रहे हैं एक नंबर 7 लिखा हुआ है। ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो वर्ड है ये कुरान पाक में 7 दफा आया है, या इतनी दफा है, जो भी नंबर होगा। तो इसको आपको याद बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही मिल जाएगी इसकी सॉफ्ट कॉपी। ये आपको सिर्फ एक उसके लिए है, आपकी ब्रेन को थोड़ी सी तकवीत देने के लिए कि आप बहुत उसमें सीख रहे हैं। मतलब इसका क्या होता है कि मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ। और इसका जो रूट है, जो रूट लेटर्स हैं इसके, वो आइन, वाव और जा है, जाल जिसको हम कहते हैं। तो इन को इस्तेमाल करते हुए ये वर्ड बन जाता है आऊज़ु, यानी मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। पनाह में जब आया जाता है तो जाहिर सी बात है आप किसी ना किसी चीज से जो है वो पनाह में आते हैं और किसी की पनाह में आते हैं। ठीक है, तो यानी दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि जब आप पनाह मांगते हैं, किसी की पनाह मांग रहे हैं और किसी से पनाह मांग रहे हैं। तो ये करते क्यों है कि जैसे हम कोई भी लेट से गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में बैठते हुए बड़ा एक फ्रेज जो है वो हर जगह मशहूर है हमारे जिंदगियों में कि सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट, गाड़ी में बैठे बेल्ट बांध दी, जहाज में बैठे बेल्ट बांध दी, और भी जो भी काम है सेफ्टी फर्स्ट हम जरूर करते हैं। बकल अप, गेट प्रोटेक्शन, ये बड़े फेमस बज वर्ड्स हैं हमारी जिंदगियों के। तो इसी तरह जब हम कुरान को पढ़ें, कोई अच्छा काम करें, जब हम शैतानी वसवसों में घिरे, तो हमें क्या करना है? हमें पनाह मांगनी है, हमें सेफ्टी फर्स्ट। तो ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को अपना एक हथियार बनाएं। और उस हथियार, क्या हथियार है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन किसकी मिलती है? जो द मोस्ट पावरफुल है, बादशाहों का बादशाह है। बिल्लाह, यहाँ पे अब ये देखिए कि बिल्लाह ये 2500 से ज्यादा मर्तबा ये कुरान पाक में आया है, और इसका नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है अल्लाह की। अल्लाह तो हमें समझ में आता है, ये की कहाँ से आया है? ये की आया है, ये देखें, ये दो अरबी में मुख्तलिफ अल्फाज मिल जाते हैं, मुख्तलिफ हरूफ मिल जाते हैं और एक 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 जुमला बनाते हैं, या एक बड़ा लफ्ज बना देते हैं। आप समझ लें इस तरह से। तो जैसे बिल्लाह है, तो ये अल्लाह के साथ, ये जो बा है बी जेर के साथ, इसको हम बी पढ़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये मिलता है तो ये अल्लाह की, तो ये बी का मतलब की हो जाएगा। तो पनाह में जैसे मैंने अर्ज किया कि आप पनाह मांगते हैं किसी की, किसी से, और किसी से पनाह मांग रहे होते हैं। तो इसी तरह ये जो हम अल्फाज की कॉम्बिनेशन है, ये अब हम जैसे देखेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा कि एक लफ्ज, दो लफ्ज मिलके एक और लफ्ज बनाते हैं। अगर हम उनको तोड़ें तो हमें मतलब आसानी से समझ में आ जाता है। तो कई दफा दो अल्लाह में आ गया, बी आ गया और अल्लाह आ गया, की अल्लाह। तो अल्लाह की पनाह में, क्योंकि उर्दू में हमारा एक पढ़ने का अपना स्टाइल है, अरबी में एक अपना स्टाइल होता है। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मिन है, मिन आगे मिन, मिन का मतलब होता है जिससे। इसके और भी मानी होते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे आपको। से ज्यादा दफा कुरान पाक में आया है अश-शैतान। अश-शैतान कॉम्बिनेशन है अल का। अल बहुत आप अरबी में देखते हैं और बड़ा पॉपुलर ये है अल, अलिफ लाम जो है। तो इसको जब जोड़ते हैं शैतान के साथ तो ये अल अश-शैतान बन जाता है, अश-शैतान। तो शैतान से मिन अश-शैतान, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की शैतान से। ठीक है, तो ये पनाह की भी आ गया और पनाह से भी आ गया इसमें।
अर्रजीम आगे आएगा। तो ये जो अश-शैतान है, अश-शैतान जब अल लगा देंगे तो आप ये समझें कि है हर शैतान से आप अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। इस अल के लगाने से ये मतलब इसमें ऐड हो जाता है। ये आगे इंशाल्लाह बड़ा आसान हो जाएगा जैसे जैसे आगे हम चलेंगे। तो शैतान है, शैतान की जो जमा है वो शयातीन हो जाती है। उर्दू में भी हम ऐसे ही करते हैं, शैतान शयातीन उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ा इजी है। 88 बार तो यही आया हुआ है कुरान पाक में। अर्रजीम, अर्रजीम जो है ये जो मरदूद है। मरदूद कौन होता है? मरदूद वो होता है जी जो अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया गया हो, जो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया हो वो मरदूद होता है, धुदकार दिया गया होगा। ये कुरान पाक में 6 दफा आया है ये। तो इसको याद भी रखने का जो आसान तरीका है वो यही है कि आप ये ज़हन में रखें कि रजीम वो होता है जो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर कर दिया गया, और वो शैतान है जो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर कर दिया गया है। तो इसका भी आप देखें कि यहाँ पे रा जीम मीम इसका जो है ये रूट वर्ड लिखा हुआ है, और इसी से फिर जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली शैतान जो है जिससे हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह की, ये शैतान है कौन? ये हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है जी। इसने करोड़ों इंसानों को भटकाया है। बड़ा तजर्बेकार ये एक एंटिटी है, करोड़ों इंसानों को भटका चुका है। और तो और जन्नत से निकलवा दिया हजरत आदम को, हजरत हव्वा को अलैहिमुस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। ऐसा तजर्बेकार है। तो मैं और आप तो फिर बड़े नाजुक से लोग हैं, तो क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर तो हम किसी सूरत नहीं हो सकते। तो जब उन पे ये हमला आवर हो सकता है, उनको फिसा सकता है, तो मैं और आप तो इसके लिए जो है वो छोटे टारगेट्स हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह की पनाह मांगनी है इस शैतान मरदूद से, क्योंकि उसने कह रखा है कि मैं दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ से हमला आवर हूँगा। वो करता है, वो बड़ा यानी शैतान अपने काम में बड़ा पक्का है। जो उसने वादा किया है उसको बड़ी ईमानदारी से बेसिकली पूरा करता है। तो हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सबके साथ शैतान लगा हुआ है और वो हम पर मुसलसल हमला करता है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, दोस्तों में। और ये बड़ी जो मोबाइल फोन है आजकल, ये अकेले में, तो ये बड़ा मसला है। तो हमें उसके साथ मुसलसल फील करना चाहिए कि हम एक हालत जंग में हैं। हर वक्त वो हम पे हमला कर रहा है और हम हर वक्त उससे बच रहे हैं। और ये बड़ा जरूरी है जी अपने आप को गैर महफूज समझना। कि हम अपने आप को गैर महफूज समझेंगे तो हम अल्लाह की पनाह मांगेंगे और हम अलर्ट रहेंगे। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो हमें अलर्ट रहना है। वो कहते हैं नहीं जी कि आपको यानी फाख्ता की तरह बेज़रर और सांप की तरह अलर्ट होना चाहिए। तो यही काम हमें करना है। हम शैतान के साथ कोई हाथापाई नहीं कर सकते। हम शैतान को दावत नहीं दे सकते कि दीन ले आ, इस्लाम ले आ। हमारे बस का रोग नहीं है, वो इसलिए बना ही नहीं है अब। और उसका एक इलाज है, और वो ताकतवर इलाज क्या है कि आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह कि या अल्लाह तेरी पनाह चाहिए, मैं तेरी पनाह में आता हूँ या अल्लाह। वो अल्लाह उससे बचा सकते हैं, वरना इंसान का बस उससे बचना नहीं है। इस छोटे से सबक से हमें जो 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 एक्सट्रैक्शन हुई है, ये सबक असबाक मिलते हैं आज इसमें, वो ये है कि शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। वो रजीम चाहता है कि उसके जहन्नम के साथी बने और उसकी बातों में आकर उसकी तरह हो जाएं। उसको तो साथी चाहिए जहन्नम में लेके जाने के, इसका टारगेट है। वो हमें जहन्नम में लेके जाना चाहता है जहां पे हम नहीं जाना चाहते किसी सूरत में भी। अल्लाह ताला से इसीलिए हम पनाह मांगते हैं, आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा आऊज़ु बिल्लाह। कोई अच्छा काम करें आऊज़ु बिल्लाह, सुबह उठें आऊज़ु बिल्लाह, कुरान पढ़ें आऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि हर अच्छे काम में ये आके टांगड़ा।
تو اعوذ باللہ کہہ کے اس کو دھتکارتے ہیں، یہ ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے کہ سیفٹی فرسٹ، ویسے بھی ہمارے معاملات میں حفاظت سیفٹی فرسٹ ہم کہتے ہیں، اور اگر ہم لوگ اعوذ باللہ کو اپنا ایک ہتھیار بنا لیں اور دل سے اس کو ادا کریں، جیسے انسان یعنی بہت دل سے التجا کرتا ہے نا کسی چیز کی، دل کی خواہش، ویسی التجا نکلنی چاہیے اعوذ باللہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ یہ بہت خطرناک ہے، یہ شیطان، اس سے ہمیں بچا لے، تو ہی بچا سکتا ہے، ہمارے بس کا روک نہیں ہے، ہم تیری پناہ مانگ سکتے ہیں، وہ ہمیں دے۔ تو یہ پہلی عادت ہے جی کامیاب انسان کی، تعوذ، سیفٹی فرسٹ۔ اور ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں جو ہیں وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلی یہ ہے، میں نے آپ سے شروع میں ایک عرض بات یہ کی تھی کہ آپ ٹیچر موڈ میں ہیں۔ آج آپ نے یہ بات سیکھی نا کہ سیفٹی فرسٹ ہونی چاہیے، اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے۔ اب جب بھی آپ اعوذ باللہ پڑھیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، شیطان ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری پناہ چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہمارا ہے نہیں، شیطان ہمیں چھوڑے گا، یہ ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا، ہم نہیں جانا چاہتے، ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو سکھائیں، اپنی فیملی میں سکھائیں، یہ پوائنٹ جتنے ابھی تک آپ نے سیکھے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے چیزیں ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے دوستوں کو سکھائیں۔ بی اے ٹیچر فرام دس پوائنٹ آنورڈس۔ بالکل اپنی زندگی میں لائیے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کے بعد جیسے آپ نے اعوذ باللہ پڑھا ہے، اس کا تصور کیجئے کہ آپ ایک بہت کمزور ہیں، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگیں۔ وہ احساس جو ہے وہ اپنے اندر لے کے آئیں کہ آپ کمزور ہوتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ ہوتے ہوئے آپ کے قریب ہے، آپ کی شہرت سے قریب، اس کے لیے کوئی فاصلے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فوراً آپ اس احساس کے ساتھ کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کے آئے گا۔ دعا تو آپ کرتے ہی ہیں، اعوذ باللہ اٹسیلف از اے دعا۔ آپ اپنا احتساب کیجئے کہ شیطان کے پھندے میں کتنی دفعہ آیا میں دن میں، اس نے کہاں کہاں مجھ پہ وار کیا، کب میں نے موبائل کو اٹھایا اس نے کہا فلاں سائٹ پہ چلا جا، کب میں نے فلاں لغو بات کی، کب میں نے زبان سے کوئی فضول بات کر دی، ٹھیک ہے، کب میں نے خراب دوستوں کی وجہ محفل اٹینڈ کی، کیسے میں نے اس کو روکا، میں روک پایا نہیں روک پایا۔ اپنا احتساب کریں، اور احتساب کے بعد پلاننگ کریں کہ میں کیسے بچوں گا، کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں گا، اور پھر تبلیغ کریں، دوسروں کو بتائیں، سمجھائیں۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو بار بار آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کورس میں۔ تو ابھی اس تصور اور دعا کے ساتھ یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، کس چیز کی؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیفٹی فرسٹ اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے آپ کو کمزور جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اس طاقتور کی کہ وہی شیطان کو دور رکھ سکتا ہے ہم سے، اور اس کے حملوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں 2 الفاظ لکھے گرین میں، علمو لکھا ہے، علمو۔ علمو کا مطلب ہے کہ آپ لوگ سکھائیے، بی اے ٹیچر، ایک دوسرے کو بتائیں، سمجھائیں۔ سمجھانے سے، بتانے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے، ریفائن ہوتا ہے۔ اور اکتبو، اکتبو یہ بھی جمع ہے کہ آپ لکھیے، سارے لوگ جو ہے نا لکھیں اپنی چیزوں کو، پریکٹس جو آپ کو ہوم ورک ملے گا، جو میں نے پہلے شروع میں بات کی، تو اپنی پریکٹس جو بک ہے اس کو آپ ضرور لے کے چلیے گا۔ اور ابھی ہم وداؤٹ اینی بریک ہم لے چکے، ہم چلیں گے جی اپنی جو گرامر ہے اس پارٹ کی طرف انشاءاللہ، جو ہمارا بی پارٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹائملی اس کو کور کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत लॉजिकल है, बहुत मजे मजे की चीजें इसमें। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा ये जो ग्रामर का पार्ट होता है। तो आओ कुरान सीखें आसान तरीके से नमाज के जरिए। बड़े इंटरेस्टिंग से आपके सामने कुछ अल्फाज हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, मन, ये 7 अल्फाज हैं यहाँ पे, और ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आज के इस सेशन में। इंटरेस्टिंग, बड़ा इजी। हम ये मुश्किल ग्रामर मैं आपको पहले बता चुका, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि बड़े बड़े अल्फाज, टेढ़ी मेढ़ी बातें, बहुत इन डेप्थ की चीजें, टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमने इसको सीखना है टीपीआई के साथ। ये टीपीआई जो है ये आसान और दिलचस्प इंटरेक्टिव तरीका है, और टीपीआई नीचे बहुत बड़ा बड़ा ब्लू में लिखा हुआ है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन ये है वो इशारों वाली बात जो हमने पहले लेक्चर में, पहले सेशन में की थी कि हम इशारों की मदद से सीखेंगे इसको। और ये इशारे क्या होंगे? अब इसमें एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये इशारे बेस है इस कोर्स का। इन इशारों को करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचें कि अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इशारे करूंगा हाथ से तो लोग क्या कहेंगे, बीवी बच्चे क्या कहेंगे, अब इतना बूढ़ा हो गया तो अब ये अजीब अजीब इशारे कर रहा है। ये इशारे, ये शैतान आपको इसमें उकसाएगा कि देखो क्या कर रहे हो यार, छोड़ो, और ना ये करना, अच्छा कर लेंगे बाद में, साथ साथ करना है। मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द फोरमोस्ट थिंग जो इस कोर्स में है, जो इसका क्रक्स है बेसिकली, जो आपके लिए आसानी हो जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से। तो वैसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है कि हम टीपीआई में पूरा वजूद इस्तेमाल करते हैं जी, पूरा वजूद। हम अपना जो तरीकाकार वजूद में क्या है, हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारा दिमाग है, ठीक है, इसी तरह हमारे जो मुंह है जिससे हम बात करते हैं, दिल है, और यानी फिर हम अपने जो हाथ बाजू इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बेसिकली टीपीआई का जो क्रक्स है, ये समझना क्या है, वो हमने ये चीज ज़हन में रखना है कि सुनिए, सुनिए, ये आपने एक तरतीब आज याद कर लें। टीपीआई इस पे बेस करती है। देखिए इशारे, जब इसको भी आप करेंगे तो इशारे करें सबसे पहले। सुनिए, देखिए, आप देखिए कान से सुनते हैं, कान से देखिए, आंख से, आंख की तरफ इशारा करें, दिमाग से आप सोचते हैं, सोचिए, मुंह से आप बोलते हैं, कहिए, बोलिए, ठीक है, फिर आप बताइए, आप लोगों को बताइए, यानी ये हम इस ऐसे इशारा करते हैं कि बोलिए, बताइए, और दिल से कीजिए ये सारे काम। ये इशारे भी दिल से करने हैं और ये इसको याद भी दिल से करना है। और फिर क्या करना है, ब्यूटी मिल के कीजिए, मिल के, जैसे आप ऐसे मिल के या ऐसे कीजिए, मिल के कीजिए, मिल के, दिल से और मिल के, ये आपने करना है। तो एक दफा मेरे साथ रिपीट कीजिए इस चीज को कि सुनिए, आपने माइक अनम्यूट कर लें जरा प्लीज, सब लोग अपने माइक अनम्यूट करें और मेरे साथ एक दफा मिल के बोलेंगे ये सारा। सुनिए, सुनिए, सब लोग प्लीज वापस इधर आइए। सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए, मिल के। मिल के कीजिए। बहुत शुक्रिया। अपने माइक्स ऑफ कर लें आप लोग, सब लोग। ये मैं आपको फिर एम्फेसिस करता चलूं, ये टीपीआई जो है ये कोई मजाक नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है, एक सिस्टम है, और हजारों लाखों लोग इस तरीके से मुस्तफीद हो रहे हैं, तो हमें भी इससे मुस्तफीद होना है। और
अभी से हमने प्रैक्टिस करनी है ताकि इसके बाद आसानी हो जाए और 20,000 बार आने वाले अल्फाज हमें ऐसे आसानी से इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये बाद वाला चक्कर नहीं है, अभी करना है। तो टीपीआई के बारे में, इन इशारों के बारे में एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देनी है, वो समझ लें। ये देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, सीधा हाथ है मेरा, सीधा हाथ। जब मैं कोई इशारा इस सीधे हाथ से करूंगा टीपीआई के अंदर, टीपीआई इस्तेमाल करते हुए जब इस सीधे हाथ से कुछ इशारे करूंगा, तो ये हमेशा इससे मुराद होगा कि मैं किसी मुज़क्कर की बात कर रहा हूँ, मैस्कुलिन मुज़क्कर की बात, किसी आदमी की बात कर रहा हूँ, किसी मुज़क्कर की। और जब मैं कोई लेफ्ट हैंड से बात करूंगा या लेफ्ट हैंड से इशारा करूंगा तो ये मुअन्नस के लिए होगा। ठीक है, तो राइट हैंड मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए, लेफ्ट हैंड मुअन्नस के लिए, औरत के लिए। ठीक है, ये क्लियर बात है। उसके बाद ये देखिए एक उंगली है। अब बात जब हम करते हैं तो इस बात को हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम किसी के बारे में बात करें जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है, कहीं और है, दूर कहीं और है। तो हम किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो यहाँ पे मौजूद नहीं है इस वक्त ना। तो एक तो हम ये बात कर सकते हैं कि हम कहते हैं वो दूर एक बंदा। दूसरा ये है कि हम आपस में बात करें, आप मेरी बात करें, मैं आपकी बात करूं। ठीक है, और तीसरा ये है कि हम सब जो हैं वो यानी अपनी बात करें, यानी अपने बारे में कोई बात हो कि मैंने ये कहा है, ये मेरा है, इस तरह वाली। तो आपकी बात, उसकी बात, आपकी बात, मेरी बात, उसकी बात, आपकी यानी तुम्हारी बात, और मेरी बात। और ये एक उंगली जो है, ये एक उंगली इशारा ये कर रही है कि मैं एक के बारे में बात करूं। तो जब मैं ऐसे करूंगा, ऐसे वाला इशारा है, इसका मतलब है कि मैं एक मर्द के बारे में बात कर रहा हूँ, एक मुज़क्कर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैंने 4 उंगलियां यानी पूरा हाथ इस्तेमाल किया यानी ऐसे, तो इसका मतलब होगा कि मैं, अब ये मेरा राइट हैंड है, इसका मतलब है कि मैं वो बहुत सारे मर्दों के बारे में, बहुत सारे मुज़क्कर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक उंगली राइट हैंड से, इसका मतलब कि एक मुज़क्कर, 4 उंगलियां मतलब के बहुत सारे मर्द, एक मर्द बहुत सारे मर्द, एक मर्द बहुत सारे मर्द। और जब मैं यही हाथ, सीधा हाथ ऐसे करूंगा, ये आपकी तरफ इशारा है, इसका मतलब है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुम, मैं कह रहा हूं तुम। और यही इशारा जब मैं अपनी तरफ करूंगा एक उंगली के साथ, इसका मतलब मैं, तुम, मैं, तुम, मैं। ठीक है, और अगर मैं ऐसे इशारा करूंगा ये सारी उंगलियां, तो इसका मतलब है कि तुम सब, अब ये तुम सब हो गए, तुम सब। और अगर मैं ये सारी उंगलियां अपनी तरफ करूंगा तो इसका मतलब है कि हम सब, हम सब। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करेंगे आप, वो एक मर्द, माइक ऑन कर लें आपने, वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो सब मर्द, इशारा भी करें साथ में। वीडियो ऑन मत कीजिए, वीडियो ऑन नहीं करनी आपको। वो एक मर्द, वो सब मर्द, वो सब मर्द, तुम एक मर्द, एक मर्द, तुम एक मर्द, मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, तुम सब मर्द, तुम सब मर्द, हम सब मर्द, हम सब बस ये 6 इशारे हैं जी। ठीक है, एक दफा इसको रिपीट कर लें, वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो सब मर्द, वो सब मर्द, एक मर्द, तुम एक मर्द, तुम एक मर्द, मैं एक मर्द, मैं एक मैं एक सब मर्द, तुम सब मर्द, और हम सब। अपने माइक ऑफ कर लें, अपने माइक ऑफ कर लें। अब ये जो टीपीआई है, ये इशारा है, ये क्यों जरूरी है? आप देखें, हम जब मोबाइल पे भी बात कर रहे होते हैं और हमसे मोबाइल पे कोई पूछता है कि मुझे एड्रेस बता दो, समझा दो, तो हम हाथ का इशारा करते हैं, यहाँ से सीधे जाओ, वहां से राइट ले लो, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर यू टर्न लेके घूम के
राइट चले जाना। तो ये मकसद क्या है कि हमारा दिमाग काम इस तरह करता है कि हम, हालांकि वो मोबाइल पे हमें देख नहीं रहा, लेकिन हमारा दिमाग हमारे हाथ को मूवमेंट्स दे रहा है। इसीलिए हम ये तरीकाकार जो TPI वाला है, ये जिनने बनाया है डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने, उनका पूरी टीम का बहुत तजर्बा, बहुत स्टडी है, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए इसके अंदर हेजिटेशन नहीं, इसको हमने पूरी तरह जो है इस्तेमाल करना है। अरबी जुबान के सीगों को आसान बनाता है TPI, इशारे आसानी के लिए हैं, दिमाग के साथ इंट्रैक्शन है, और शैतान से अपने आप को बचाएं। अब वो कहता रहे ये इशारे क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो, देखो जी मैंने करने बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इशारे करें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए। कितने लफ्ज स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जी? चैट में बताइएगा कितने लफ्ज नजर आ रहे हैं। चैट में बताइए प्लीज। 6 सिस्टर सुमेरा कह रही हैं 6, ब्रदर इजाज भी 6 कह रहे हैं, और ऑलराइट। देखिए ये देखने में तो 6 ही है यहाँ पे, लेकिन ये जो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, ये कुरान पाक में कोई 1300 बार आए हैं। ये ऊपर देखें ब्लू टैग में लेफ्ट में, ये कुरान पाक में 1300 बार आए हैं, 1300। तो खाली इनको सीखने से हम बहुत कुछ सीख लेंगे। तो एक दफा मेरे साथ अब रिपीट कीजिए दोबारा से, अपने माइक ऑन कर लें, और अब हम अरबी में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने कहा वो एक वर्ब, यानी वो के लिए राइट हैंड कर रहा हूँ, राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे। हुआ हुआ बोलिए, हुआ 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 हुआ। ऑलराइट, हम हुआ वो, हम वो सब, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ओवर एक्टिंग करके ओवर होने की जरूरत नहीं है। अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, नहनु हम सब। ऑलराइट, इसकी एक दफा प्रैक्टिस और कर लेंगे। माइक अपने ऑफ रखेंगे, माइक ऑफ रखें प्लीज। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। तो इसकी प्रैक्टिस जो है ये आपको करनी है। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु, बड़ा इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, और आप तकरीबन 1300 अल्फाज इस तरह से सीख लेंगे इंशाअल्लाह। अरबी बोलचाल के हवाले से नए अल्फाज में एक और मन है। मन का मतलब होता है कि कौन, जैसे हम कहते हैं ना मन, सुनते हैं अक्सर, कहते हैं कि हम क्या, मन अंता, हम कहते हैं मन अंता यानी तुम कौन हो। तो अब देखें, पहले हमने हुआ हम, अंता, अंतुम पढ़ा, अब इनसे पहले अगर मन लगा देंगे, मन, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। मन हुआ, इशारा करना है साथ में, मन हुआ, मन हुआ, मन हुआ यानी वो कौन है। जवाब क्या है, हुआ मुस्लिम, इसी हाथ से हुआ मुस्लिम, मन हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। मन हुआ मुस्लिम, मन हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता। अब ये क्या है, अब ये नहीं कहना कि अंता मुस्लिम, अब ये कहना है कि अना, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है मन अंता, कि आप कौन है, तुम कौन हो। मन अंता अना, अब अपनी तरफ इशारा करना, अना मुस्लिम। मन अंता अना मुस्लिम, मन अंता अना मुस्लिम।
मन अंतुम, मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु, नहनु मुस्लिमून। मन हुआ, मन हुम, मन अंता, मन अंतुम, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमून, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। तो ये आपने देखा कि कितने प्यारे अंदाज से वर्ड्स आपस में मिलते हैं और उनके जो मतलब है वो इंसान को समझ में आना शुरू हो जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अरबी है जी। अब ये देखें कि इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज जैसे वाह है, फा है, आ है, वाह यानी और, फा यानी पस, आ यानी क्या, इनका इस्तेमाल जब हम दूसरे अल्फाज के साथ करते हैं तो इनके मतलब और इनके जुमले बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने हुआ पढ़ा यानी हुआ वो, तो वह हुआ, वह प्लस हुआ, हम पढ़ा, वह हम, वह हुआ यानी और वो सब। इसी तरह ये पूरा टेबल अगर हम कर ले कि वह हुआ, वह हम, वह अंता, वह अना, वह अंतुम, वह नहनु, तो ये आपने इशारे इस तरह से करके इनको रिपीट करना है। तो वाह जैसे हमने लगाया तो इसका मतलब हो गया वो और वो, वाह हुआ और वो, वाह हम और वाह हम, वाह हुआ वाह हम, वाह अंता वाह अना, वाह अंतुम वाह नहनु। अब मैं, वो सब, आप सब और हम सब, इनके साथ वाह लगा दिया तो ये एक नया फ्रेज हमारे सामने आ गया। इसी तरह फा भी लगा सकते हैं। क्या वाह को हटा दें और फा लगा दें? फा का मतलब होता है पस, वाह का मतलब था कि और वो, और फा का जब हम कहेंगे फहुआ, फहुआ का मतलब होगा कि पस वो, फहुम पस वो सब, फहुआ फहुम, फहुआ फहुम, फअंता फअना, फअंता फअना। अच्छा ये जो अना है ना, इसको अना नहीं कहना, इसको अना, फअंता अना, फअंता अना। क्यों अना होती है, अना तो बड़ी हो जाती है, फिर अना को छोटा रखना, अना, फअंता फअना, फअंतुम फनहनु, फअंतुम फनहनु। तो अभी आप देखें कि इन्हीं 6 जो हमने वर्ड्स देखे थे, इसके साथ वाह लगाया और 6 बन गए, उसके साथ फा लगाया और 6 बन गए, खाली रखा तो वो 6 बन गए। ये देखिए इस तरह ही कुरान पाक में कॉम्बिनेशंस हैं। और इसी तरह वो जो 78,000 अल्फाज हैं वो हम कम करते 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 1850 पे इस तरह से उसको लेके आ जाते हैं। अब ये देखिए कि एक तरतीब यहाँ पे, ये जो भी हमने टीपीआई के जरिए सीखा, ये टीपीआई हमारे साथ साथ चलेगी पूरे कोर्स में इंशाल्लाह। हाँ, हुआ जो है ये 481 टाइम्स जो है ये कुरान पाक में है, हम 444, अंता 81, ये पूरा आप देख लें। तो ये पूरे का पूरा जो टेबल है ये एक नंबर्स आपको दे रहा है कि ये कैसे ये अल्फाज जो हैं ये कुरान पाक में मौजूद हैं 1300 के करीब बार। नुक्ता तालीम जो है वो आज का यहाँ पे वो ये है कि जी कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा डेफिनेटली, और इसकी कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को दिमाग की कमी नहीं दी है। इसके लिए जो साइंटिफिक रीजंस हैं और साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारा ये जो ब्रेन सेल है ना जी, जो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कहते हैं जी 1 बिलियन 100 बिलियन सेल्स हैं, और अभी तो ट्रिलियंस में भी कहते हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन आप 100 बिलियन सेल्स को भी ले लें तो 100 अरब बड़ी एक नंबर होता है। और इन सेल्स के अंदर, इन हुलियों में हर एक में 20,000 तक शाहे हैं। अब 20,000 को फिर 100 बिलियन से मल्टीप्लाई करें, वो कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा कि पता नहीं क्या है। और फिर इतनी सारी जो ये न्यूरॉन्स हैं हमारे, जो अंदर कनेक्शंस, तारें बनी हुई हैं इस जिस्म के अंदर, इसमें आपको पता है प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, 500 टाइम्स पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है कम्युनिकेशन की। यानी 500 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड आप समझें कि हमारे अंदर चल रही है, हमारे इस ब्रेन में।
बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ। तो इसका इस्तेमाल हमें करना है, और इसका इस्तेमाल जो सही चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है वो यही है कि हम अल्लाह का रास्ता देखें, उसको अपनाएं, उस पर चलें, कुरान से इस्तेफादा करें। ये मेरी आपकी ज़िंदगी की मैनुअल है कुरान। ये जैसे मोबाइल का मैनुअल होता है ना, कि एक मोबाइल का मैनुअल होता है, उसको हम मोबाइल नया लाते हैं और हम देखते हैं कि यार इसमें कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या निकालूं इसमें से मैं, नहीं समझ आती है, यूट्यूब देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, और अल्टीमेटली हर एक फंक्शन जान के रहते हैं। यार ये लेटेस्ट मोबाइल मेरे पास इतने लाख का लाया हूँ और इसके सारे फंक्शन तो जानना जरूरी है। तो क्या ये जो बॉडी है, ये जो हमारी जिस्मानत है, ये जो हमारी शख्सियत है, ये एक आईफोन की कीमत की भी नहीं है कि उसका जो मैनुअल है वो हम पढ़ते ही नहीं। उसका मैनुअल तो ये कुरान है। अगर उसको पढ़ते भी हैं तो उसको हम उसका हक अदा नहीं करते हैं। उसका हक कैसे अदा नहीं करते हैं, उसका हक कैसे अदा नहीं करते हैं कि उसको समझते नहीं। तो बेसिकली एक राउंड अप में, इस सारे एनालिसिस में, एक चीज में देखें, कुरान पाक के कम से कम 5 हकूक तो हमारे ऊपर है ना, ठीक है। एक इसके ऊपर ईमान लाना, इसकी तलावत करना, इसको समझना, समझ के इसको अपने अमल में लाना, और फिर चौथी चीज ये है कि जब ये हमारे अमल में आ जाए फिर दूसरों लोगों तक पहुंचाना। तो हमें अपना एनालिसिस के साथ आज मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह थोड़ी देर में रिलीव करूंगा कि आपने ये 5 हकूक इस कुरान के जहन में रखने, और फिर देखना है कि आप इन 5 में से कहाँ खड़े हैं। हमने अपना एहतिसाब जो है करना है, जो हमने वो एक सर्कल पढ़ा था। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है जी, बहुत ज्यादा कुव्वत है आपके पास, इसको अंडरमाइन ना करें, इसको मत समझें कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपके अंदर बड़ी कुव्वत है। ये शैतान हमला करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, हर तरह से हमला करेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे से, आपको बस के ये कुरान पढ़ने क्यों निकला। और सबसे ज्यादा जो है वो कुरान सीखने और सिखाने वालों पे हमला करता है। क्योंकि देखिए चोर कहाँ जाता है, चोर जो है वो कभी खाली घर में तो नहीं जाएगा, वहां उसको मिलेगा ही कुछ नहीं। चोर हमेशा जाता है जहां को भरा हुआ, को माल तो मिले ना यार। तो शैतान भी जो पहले ही उसके रास्ते पे, उसको जाके क्या खराब करेगा, जो पहले ही खराब हुआ है वो तो उसका टारगेट तो वो है जो खराब हुआ था और वो सही होना चाह रहा है, या जो पहले सही चल रहा है उसको खराब करेगा। तो अब जब हम कुरान के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे चले तो उसने अटैक तो करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्तलिफ वसवास जो है वो छोड़ेगा, मुख्तलिफ हमें रास्ते बताएगा, मुख्तलिफ ख्यालात वसवसे पैदा करेगा, लेकिन हमारे पास हथियार है, हमने आज सीखा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो क्या है जी, ताअव्वुज़। एक दफा इसको जोर से बेशक बोले, माइक बंद रहने दे, लेकिन ताअव्वुज़ ताअव्वुज़, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक हो जाए। ताअव्वुज़। तो ये मत कहें कि ये मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। शैतान आपको कहेगा आपके कि भाई मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अल्लाह की पनाह में हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। याद रखिए कि सबक 1 के इख्तिताम पर आपने 12 नए अल्फाज सीखे हैं, और जो कुरान पाक में 7248 बार आए हैं। और ये जो हमारी बैटरी है ये पहले 0 थी, आज ये थोड़े से टाइम में लेस देन 2 आवर्स हमारी बैटरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पे आ गई है, 7248 पे। तो कुरान में कुल तकरीबन 45,000 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। और फिर हमने आगे देखा कि इनको अगर मजीद इनके जो रूट वर्ड्स हैं उनको देख लिया जाए और उनको समझा जाए, जो कि हम समझेंगे इंशाल्लाह जैसे वक्त आएगा। आगे 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 ये इशारा याद है ना, तो ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम 1850 अल्फाज तक आ जाएंगे। इस कोर्स में हम कोई 230 232 सीख लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट स्टेजेस में सीखते जाएंगे। और इंशाल्लाह कोई दूर का अरसा नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग कुरान पाक को सुनकर पढ़कर अरबी में हम उसको समझना शुरू कर देंगे। और मैंने जो पहले अर्ज किया था आपसे कि शुरू में कि कुरान पाक को डायरेक्ट अरबी में पढ़ के समझने का जो लुत्फ है
وہ ترجمے میں ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ اثر ہے اور نہ وہ ترجمے میں وہ کیفیت آتی ہے. یہ انشاءاللہ آپ بڑی جلدی محسوس کریں گے. 7 ہوم ورکس ہیں جی، آپ نے یہ ہوم ورکس ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ سب کے سب جو اللہ کے کلام کی طرف آئے ہیں اور اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہم سب کو کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ہدایت پائیں گے اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں بہتر کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس چیز کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ جو نافع علم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس قرآن میں، اس قرآن کلاس کو سمجھنے میں، اس میں ٹائم لگانے میں ہماری لیے آسانی فرمائیں گے. تو یہ جو ہوم ورکس ہے نا، اس میں آپ نے 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں کہ آپ نے 5 منٹ مصحف کو پڑھنا ہے اور 5 منٹ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنے یعنی حافظے سے تھوڑا سا پڑھیں، اس کو وہی صورتیں جو آپ کو اگر پکی نہیں ہے ان کو پکا کرنے کی کوشش کریں یا ایک ترتیب سے شروع کر لیں. جیسے ابھی ہم یہ پڑھے ہیں، جو ہم پڑھتے جاتے ہیں اسی کو آپ اپنا حافظہ اسی پہ تیز کریں، دیکھ کے پڑھیں زبانی پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں زبانی پڑھیں. 2 پڑھنے کے آپ کے ہوم ورک ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کتاب جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ اسی گروپ میں. آج رات کو یا صبح شیئر ہو جائے گی کتاب جو ہے، اور پاکٹ بک جو ہے وہ بھی شیئر کر دی جائے گی. آپ کی جو ورک بک ہے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دی جائے گی. تو وہ جو پاکٹ بک ہے اس سے وہ کارڈ مراد ہے جس پہ وہ 230-32 کے الفاظ کے معنی لکھے ہوئے، وہ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ان کو یاد کر سکتے ہیں. اس کورس کا جو لفظی ترجمہ اور قواعد کا جو MP3 ہے وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھیں سنیں، وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا. اور اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے کلاس فیلوز سے آپ اس کورس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو آج آپ نے لرن کیا، جو آپ نے تعوذ کو ایک نئے انداز میں دیکھا کہ سیفٹی فرسٹ کیسے آپ کو شیطان سے بچائے گا، یہ کیسے آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی جو نماز کے مختلف جو صورتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹیچر بننا ہے آپ نے اس سبق میں جو سیکھا، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ آپ نے جو تعوذ آج پڑھا ہے، آج آپ اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یار دیکھو تعوذ کا مطلب یہ ہے سیفٹی فرسٹ. آپ جیسے گاڑی کی بیلٹ باندھتے ہیں اسی طرح آپ اپنے اعمال میں سیفٹی بیلٹ باندھ دیتے ہیں. کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، تعوذ پڑھیں گے، اللہ کی پناہ میں آئیں گے، شیطان سے بچ جائیں گے، تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جب اللہ کی پناہ آ جائے. تو سکھائیں لوگوں کو، بات کریں ان سے. اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا سکھانے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ریہرسل ہوگی اور سکھانے سے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. جب جتنا علم آپ بانٹیں گے یہ وہ چیز ہے کہ یہ اور بڑھتی ہے. اگر آپ کو کل کو ٹریننگ چاہیے، آپ نے پراپر ٹیچر بننا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ملے گی آپ کو. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ بھی بیٹھے ہوئے اپنے QC1 پڑھا رہے ہوں گے، QC2 پڑھائیں گے لوگوں کو، یہ آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی طرح یہ بڑا امپیکٹ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ جو میں نے عرض کیا نا ابھی آپ سے پہلے کہ اس قرآن پاک کے جو کم از کم 5 حقوق ہیں، تو یہاں جو لسٹ ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں وہی ایمان تو پہلی بیسک چیز ہے. دوسرا اس کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ غور کیے بغیر ہم سمجھیے مینول سمجھ نہیں ہے ہماری مینول،
याद करने, अमल करने और फिर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, हमें शैतान मरदूद से बचाए और हमारे लिए आसानियां फरमाए। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज का हमारा क्लास जो है वो ख़त्म होती थी यहाँ पे। ये आप भी, मैंने ये दुआ यहाँ पे दोबारा से आपके लिए अपीयर कर दी है। आप लोग भी इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें। मैं आहिस्ता पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।